ध्वज की धूम है। यहां दी मुर्मू उन्हें शपथ दिलाएंगी। पारंपरिक और समारोहिक सज धज की धूम है। यहां राष्ट्रपति भवन में भव्यता में सादगी है और सादगी में भव्यता। पूरा वातावरण उत्सुकता से भरा हुआ। देश की नई सरकार के शपथ ग्रहण का समय निकट आता हुआ। बेहद खास मेहमानों की मौजूदगी है यहां पर। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण की शोभा आज लिख रही है नए उत्कर्षों की कहानियां। नई सरकार का गठन होने वाला है। देश को मिलने वाली है नई ऊर्जा, नवीन संकल्प, नए विचार। This energy, this enthusiasm is palpable here. The majestic Rashtrapati Bhavan looks even more splendid this evening as it is dressed up for a very special occasion. An historic occasion. Prime Minister-elect Shri Narendra Modi will take the oath of office for the third consecutive time. Modi ji will become the second Prime Minister in the history of independent India to do so, and after India's first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru. As the sun sets gently behind the dome of Rashtrapati Bhavan, its last rays suffuse the forecourt with a warm glow. The interplay of light and shadows creates a magnificent chiaroscuro of potentialities, a reflection of the new possibilities for the people of India as the new government aspires to take the country forward. For Doordarshan, it's an honor and privilege to bring this event live for you. नील गगन में सांध्य तारा का, पावस में प्रथम फुहारा का और माला में जो स्थान प्रथम मणि का रमणीय होता है, ठीक वही स्थान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का है। आज की शाम उम्मीदों की शाम है। ये एक नई शुरुआत है टीम इंडिया के करोड़ों सपनों को पूरा करने की दिशा में। ये नया आगाज है संभावनाओं को संभव बनाकर देश को प्रगति के शिखर तक ले जाने का। ये नूतन प्रयास है करोड़ों देशवासियों के आत्मीय स्नेह और समर्थन के प्रति आभार व्यक्त कर उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का। The stage is set for a momentous occasion. The swearing-in ceremony of India's Prime Minister for the third consecutive term. The forecourt buzzes with anticipation, thrumming with the energy of a nation eager to witness history unfold. Dignitaries and guests gather, and the atmosphere is absolutely crackling with excitement and significance. The Rashtrapati Bhavan, with its grandeur and timeless elegance, provides the perfect backdrop for this auspicious event, a symbol of India's democratic ideals and aspirations. ठीक कहा प्रिया। आज भारत के प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों का संवैधानिक शपथ ग्रहण समारोह है। धीरे धीरे माननीय शपथ लेने वाले मंत्रीगणों का शुभागमन हम देख पा रहे हैं स्क्रीन में। यह अत्यंत विशेष और ऐतिहासिक अवसर है। जिन विशिष्ट सांसदगण को आज मंत्री पद की संवैधानिक शपथ दिलाई जा रही है, उन सभी पद नामित मंत्रियों को हमारी ओर से अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं। ये विकसित भारत 2047 के कर्णधार हैं। आज का ये समारोह दूरदर्शन, आकाशवाणी और इंटरनेट के माध्यम से ओरिजिनल टेलीकास्ट और प्रसारण के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। आज प्रत्येक देशवासी इस पल में आंखों में देशभक्ति की चमक और दिल में देश प्रेम की भावना के साथ आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कार्य करते हुए विकसित भारत 2047 के स्वप्न को साकार करने वाले उज्जवल भविष्य पर नजर गड़ाए हुए है। इस ऐतिहासिक क्षण के हम सब साक्षी होने जा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन आज
इस समारोह के लिए सज धज कर तैयार खड़ा है। And we see the वजह से ही सरकार को पुनः देश की जनता चुनती है। Modi ji often says this is indeed India's hour. India is taking giant strides in the world on various fronts, whether it is cinema, sports, space. We are seeing confidence, courage, and a certain panache in various fields of excellence. And in each of these fields, it's the women who are leading the way. Payal Kapadia made history at the Cannes Film Festival with her film All We Imagine as Light, for which she won the Grand Prix. Anusuya Sengupta won the Best Actress Award. Before that, of course, the men too did well. Last year, Natu Natu won the Best Song Oscar in 2023. पवन कल्याण को अभी हमने देखा, जनसेना के नेता जिनका बहुत योगदान है और जैसा कि हम सब जानते हैं बहुत ही मशहूर, प्रचलित, प्रख्यात और रामदास अठावले। एक एक करके ये सभी चर्चित चेहरे यहां पधार रहे हैं। कई बार मुश्किल होता है सबका नाम एक साथ लेना और उत्सुकता बहुत है। और राष्ट्रपति भवन का प्रांगण जो अगर इस समय हम राष्ट्रपति भवन की ओर से देख रहे हैं तो उसके बीचों बीच ये ऐतिहासिक जयपुर स्तंभ 145 फीट ऊंचा, यहां मेहमानों का लगातार आगमन हो रहा है। कुछ ही देर में यहां, जैसा हमारे साथियों ने बताया, विदेशी मेहमान जो राजनेता हैं वो भी पधारने वाले हैं। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री का आगमन होगा, फिर समारोह राष्ट्रपति जी के आगमन के पश्चात प्रारंभ होगा और जिसकी प्रतीक्षा हम सबको है, पूरे देश को है, दुनिया को है, देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनका आगमन। भारत में लोकतंत्र की एक प्राचीन और अखंड संस्कृति रही है, या यूं कहें कि भारत वैश्विक लोकतंत्र का स्तंभ रहा है। आजादी के बाद से 18 राष्ट्रीय चुनाव, 400 से अधिक राज्य चुनाव और 10 लाख से अधिक स्थानीय स्व सरकारी चुनावों का अनुभव ये देश कर चुका है। हम दुनिया में एकमात्र राष्ट्र हैं जिसने हर वयस्क नागरिक को स्वतंत्रता के बाद पहले दिन से ही मतदान का अधिकार दिया है। ये विहंगम नजारा आप जो देख रहे हैं, ये राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने लगभग 10,000 लोग इस ऐतिहासिक समारोह का साक्षी बन रहे हैं और शंकराचार्य का भी यहां पर आगमन होता हुआ। भारत हमेशा से ही जहां संविधान के तौर पर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहा है, वहां अपने आध्यात्मिक गुरुओं के प्रति कृतज्ञता का भाव और यहां पर लोगों में उत्साह है, जोश है। वो नए भारत के नई तस्वीर गढ़ने में अपना योगदान देना चाहते हैं। इस समय शंकराचार्य का, रामभद्राचार्य का आगमन, शंकराचार्य का आगमन और जैसा हम सब जानते हैं आज के समारोह में धार्मिक नेताओं, संतों की भी गरिमामयी उपस्थिति है। संत रामभद्राचार्य जी जिनका भी आगमन हुआ और श्री आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल, डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद को हमने देखा जो జమ్మూ से సుమన్ టీవీలో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి।